Hello, my dear students. As you drew my attention that, sir, in second chapter exercise, some numericals are remaining, near about 10-15 numericals are remaining, among them 2.5. I don't know which are remaining, but you have given me the list. So that is the 2.5, that is from your side, the yellow light emitted from sodium lamp. I think I have solved this, and lambda is 580 nanometer. So calculate the frequency and wave number you are asked. So in speed, let us discuss. First, find out the frequency. Okay, so recall some formulae which are given. This is lambda is equal to c by nu, so nu is equal to c by lambda. So c is nothing but the velocity of light. Lambda already given in nanometer, convert it in meter and replace the values. See, all values are here. This is the c and this one is lambda in meter. Place value, you will get the frequency. Then after you are asked find the wave number, nu bar. Nu bar is nothing but 1 by lambda. So lambda is already given. So 1 upon 580 multiplied by 580 multiplied by 10 raised to minus 9 and simplify it. This is nothing but the wave number. These two things you are asked, wave number and frequency. Okay, this is a very easy question. Now 23 number, let us discuss. So see here, the wave number final answer is also 1.72 multiplied by 10 raised to 6 meter inverse. Okay, so let us see the 23 number problem. See here on your screen the 23 number problem that is asked in three department. First one, you have to write the electronic configuration of H minus. So in all the cases you have to first find out number of electron. In H minus 2 electrons are there, so electronic configuration is 1s2. In sodium plus 1 electron is removed, so neutral sodium 11 electron, sodium plus electrons are 10, so electronic configuration will be 1s2, 2s2, 2p6, like that you have to write. Oxygen 2 minus, oxygen atomic number is 8 and 2 electron captured from outside and it gained a 2 minus, so number of electrons are 10. So once again the electronic configuration is same. Atomic number of electron in neutral fluorine is 9 and 1 electron gained from outside, so total 10 electron in F minus, so same electronic configuration. Check this answer. Okay, so first question, H minus. So H minus electronic configuration is 1s2. Okay, then Na plus, this Na plus is nothing but this one. ये सोडियम का है, तो Na प्लस का Na प्लस इज दिस वन, 1s2 2s2 2p6, बिकॉज ये 3s में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, सो यू कैन राइट 1s2 2s2 2p6. O2 माइनस ऑल्सो टोटल Z इज इक्वल टू, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, O2 माइनस की ये है ना, ये न्यूट्रल फ्लोरीन की है, तो F माइनस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन करते हैं वो लोग. Second question you are asked that second में क्या पूछा है हम लोगों ने वो देख लो. What are the atomic numbers of the elements whose electronic configuration represented by this 3s1 2p3 3p5. तो आपको कुछ नहीं करना है, आउ बाउ प्रिंसिपल में जाना है, 3s1 तक जाना है. ठीक है, तो आपको ऐसे करना है 1s2 2s2 2p6 और बाद में बारी आती है 3s1. आप यहाँ तक, जहाँ ये लिखा है वहाँ तक आपको जाना है. अब ये टोटल लगा लो तो 11. तो ये जो एलिमेंट है जिसका बाहर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3s1 है उसका एटॉमिक नंबर 11 है. उसी तरह 2p3 में चले जाओ तो 1s2 2s2 और 2p3, कितना हुआ टोटल 7, तो इसका एटॉमिक नंबर 7 आएगा. और इसका 3p5, तो 3p5 में चले जाओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. अब में है ना ऑर्डर, ये मैंने आपको
बोला है कि आपको ऑर्डर, तो जहाँ ये लास्ट दिया है वहाँ तक आपको जाना है। अब इसका टोटल लगा लो 10 और 17, तो इसका एटॉमिक नंबर आएगा 17। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन यू आर आस्क्ड दैट विच एटम्स आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कन्फिगरेशन। ये है हीलियम, हीलियम का 2 और 2s1, तो टोटल 3, तो एटॉमिक नंबर 3 ऐसे हुआ ना, 1s2 हीलियम और 2s1 टोटल एटॉमिक नंबर। तो विच एटम्स इंडिकेट, तो ये जो है वो लिथियम को इंडिकेट करता है, एटॉमिक नंबर 3। अब ये है नियोन 10 कंप्लीटेड, नियोन का 10 कंप्लीटेड और बाकी है ये 5, तो 15 नंबर का एटम कौन सा है, 15 नंबर एटम इज। अब आपको पता चलेगा कि मैंने 130 एलिमेंट आपको क्यों प्रिपेयर करने के लिए बोला था। ये फॉस्फरस है, ये आर्गोन, आर्गोन मतलब 18 कंप्लीटेड, बाकी कितने हैं 3, 18 प्लस 3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 21, इसका मतलब हुआ एटॉमिक नंबर 21, तो ये है 21 नंबर का स्कैंडियम। ये 15 नंबर मतलब एटॉमिक नंबर 15, 15 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये है फॉस्फोरस। ठीक है, अब चेक कर लो, यहाँ पे सिर्फ एटॉमिक नंबर ही लिखा है। ठीक है, कौन सा एटम है वो नहीं बताया सी में, क्लियर नहीं बताया। ये रहा, ये पहला लिथियम, दूसरा जो है ये Ne, ठीक है, वो एलिमेंट क्या, ये रहा फॉस्फोरस, तीसरा एलिमेंट है स्कैंडियम। हो गया, तो अब आपने दिया है 26 नंबर, तो चलिए हम 26 में सी हियर, आपकी स्क्रीन के ऊपर 26, उसमें क्या है, एलिमेंट कंटेन 29 इलेक्ट्रॉन्स, 29 इलेक्ट्रॉन्स 35 न्यूट्रॉन्स, तो उसमें प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट। तो 29 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 29 प्रोटॉन्स होंगे, 35 न्यूट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो प्रोटॉन का आंसर तो आ गया 29, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप दे सकते हो, इज इट क्लियर। तो आपको 29 इलेक्ट्रॉन फिल करने, आउटबाउ प्रिंसिपल से फिल कर लो, ये रहा देखिए 29 इलेक्ट्रॉन, आउटबाउ का ऑर्डर जो है 1 2 2 122 33 43। ठीक है, ये टोटल लगा लो 23 होने चाहिए, 6 4 10 12 18 18 प्लस 30 हो रहे हैं ना, तो कितने हैं यहाँ पे, कितने फिलअप करने हैं हमको, 26 है ना, यस 26 नंबर, 29 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो 29 फिल करने हैं हमें। हाँ, ये 29 करने हैं, तो ये कॉपर है, कॉपर एक्सेप्शन वाला है, ऐसे लिखना, आर्गोन 3d4s, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 10 आएगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन है प्रैक्टिकली। ठीक है, तो ये रहा आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब आपने नंबर दिया है 27 नंबर, तो चलिए 27 नंबर देख लेते हैं। ये रहा 27 नंबर, गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्पीसीज, इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन है बताना है आपको। H2 प्लस मतलब कि H2 और ऊपर प्लस, तो दो हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, एक निकल गया, H प्लस है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये रहा 1। और H2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और O2 प्लस, एक ऑक्सीजन में 8, तो 2 ऑक्सीजन में 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो 2 ऑक्सीजन में 16, और यहाँ पे प्लस है तो एक माइनस 15 इलेक्ट्रॉन, ये रहा ऑक्सीजन में 15। तो ये बहुत इजी है। बाद में आपने नंबर दिया है 30, तो चलिए 30 नंबर question is here on your screen, that is asked which of the following set of quantum number are not possible, कौन सा क्वांटम नंबर का सेट पॉसिबल नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है कि n की वैल्यू और l की वैल्यू, तो n की वैल्यू और इन ऑल द केसेस l ऑलवेज लेस देन n। ओके, तो पहले वो दो देख लेना, 90% आपका आंसर आ जाएगा कि L की और N की वैल्यू अगर सेम रही
तो ऐसा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं होते। देख लीजिए यहाँ पे, तो पहला देख लीजिए N0L0, ये पॉसिबल नहीं है। N1L0 तो ये पॉसिबल है, और N1L1 दो सेम है, ये पॉसिबल नहीं है। ये N2L1 ये पॉसिबल है। तो A एंड C बोथ आर नॉट पॉसिबल, क्योंकि L की वैल्यू जो है वो N से कम ही होती है। तो ये कौन से नंबर का था? 27 नंबर। अब आपने बोला है 30 नंबर, तो 30 नंबर 30 तो हो गया ना, 30 हो गया, तो 31 आपने बोला है, ये 31 बाकी, तो 31 देख लीजिए। इतना लंबा सॉल्यूशन नहीं करना, मैंने जो जो बोला वही शॉर्ट में देख लेना है आप लोगों को, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एटम में हैव द फॉलोइंग नंबर। अगर n इज इक्वल टू 4 है तो इसकी स्पिन क्वांटम नंबर -1/2 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? तो टोटल इलेक्ट्रॉन पहले फाइंड कर लीजिए, 2n²। 2n² टोटल इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो 2 × 16, तो टोटल 32 इलेक्ट्रॉन। तो 32 इलेक्ट्रॉन्स में से हाफ के पास +1/2 स्पिन होगी और हाफ के पास -1/2 स्पिन होगी, ठीक है। तो 32 का आधा कर दीजिए, तो इसका ए का आंसर आएगा 16 इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से आधे +1/2 आधे -1/2, तो यहाँ पे आंसर आएंगे 16 इलेक्ट्रॉन। अब n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 0, मतलब कि ये ऑर्बिटल हुई 3s। तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहला 16 इलेक्ट्रॉन, पहला आंसर, दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये देखिए, पहले का आंसर जो है वो है 60। सीधा, इतना लंबा नहीं, सॉल्यूशन नहीं करना है। और यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है। ओरल आप आंसर दे सकते हो सीधा 30। अब हम जाएंगे 33 के ऊपर, ठीक है। से 33 यू हैव गिवन मी, बट आई थिंक आई हैव सॉल्व इट। अगर नहीं सॉल्व किया है तो फिर से देख लीजिए, क्योंकि आपकी तरफ से नंबर आया है कि ये सॉल्व नहीं हुआ है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बामर ट्रांजिशन। बामर ट्रांजिशन जो है एंड n इज इक्वल टू 4 to n इज इक्वल टू 2 ऑफ He+ स्पेक्ट्रम। हीलियम का हमको 4 से 2 का ट्रांजिशन यहाँ दिया गया है, ओके। और हाइड्रोजन के लिए हमें ट्रांजिशन ये सेम वेवलेंथ में फाइंड करना है, शायद नहीं किया होगा। तो देख लीजिए, पहले आपको फाइंड करना है न्यू बार, वेव नंबर एसोसिएटेड विथ n इज इक्वल टू 4 to n इज इक्वल टू 2। यूज़ द न्यू बार फॉर्मूला। इसके में r की वैल्यू मत रखिए, z² आपको रखना है, क्योंकि ये हाइड्रोजन और हीलियम की बात है। तो हाइड्रोजन के लिए आप z² नहीं रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि z 1 है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये फॉर्मूला रखिए, और n1 को 4, n2 को n1 को 2, n1 को 2। अगर आप n1 को 4 ऐसा ले लेते हो, n1 को 4 और n2 को 2, तो आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आपको कंसीडर करना नहीं होता है। नेगेटिव मतलब कि एनर्जी रिलीज, पॉजिटिव मतलब कि एनर्जी एब्सॉर्ब। मैथमेटिकली वैल्यू नहीं सोचनी होती, तो उस हिसाब से आपको पहले न्यू बार फाइंड कर लेना है। सो फाइंड आउट द न्यू बार, एंड दैट न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, और वो आएगा 3r/4, या 3r/4। अब ज़रा कैलकुलेशन देख लीजिए, जल्दी मुझे ये ख़त्म करना है, इसलिए ये फॉर्मूला यूज़ करो, 2 2 4 n1 2 n2 4, ठीक है। तो ये आएगा 3r। अगर आप n1 4 लेते हो ना वापस आने के लिए, तो -3r/4 आएगा। तो बाद में हम माइनस निगलेक्ट कर देंगे। तो इसका लेमड़ा कितना हुआ? तो वेवलेंथ आया 4/3r, 4/3r। इज इट क्लियर? अब हमें वही चीज फाइंड करनी है, किसके लिए? वह सेम लेमड़ा 3r/4। न्यू बार कितना है? अब यही फॉर्मूला हम हाइड्रोजन के लिए यूज करेंगे, यही फॉर्मूला। उसके लिए लेमड़ा सेम है तो न्यू बार भी सेम होगा। तो ये फॉर्मूला फिर से हाइड्रोजन के लिए यूज करो। तो न्यू बार की हमारे पास वैल्यू है, वो यहाँ पे रख दो 3r/4। यहाँ पे z की वैल्यू हमने 2 रखी थी, 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 आया। यहाँ z की वैल्यू 1 रख दी, और 3r
ये आर 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 कैंसल आउट, ठीक है। तो 1/n1² अपन 1/n2² 3/4 बचेगा। तो अब आपको फाइंड करना है n1 n2। तो 3/4 कैसे आएगा? n1 कितना लेंगे और n1, अब ट्रायल एरर मेथड से जाना होगा। चलिए मैं n1 जो है वो 3/4 आंसर चाहिए ना मुझे, तो मैं n1 2 ले लेता हूँ, तो यहाँ 4 आएगा। माइनस n2 1 ले लेता हूँ मैं, तो 1/1 आएगा। तो 1 माइनस 3 आ गया ना 3/4। या तो n1 इज इक्वल टू 1 ले लो तो पॉजिटिव आंसर आएगा, n2 इज इक्वल टू 2 ले लो, 1 2, ठीक है। तो 3/4 आ जाएगा। ट्रायल एरर से इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। n1 इज इक्वल टू 1 ले लो, n2 आप 1 2 2 3 ऐसा लेके चलेंगे तो आ जाएगा 2, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/4, 4 माइनस 1/4 3/4। तो n1 1 आ गया, n2 2 आ गया। सम हो गया कंप्लीट। ये कॉम्पिटिटिव बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। ट्रायल एरर मेथड से ये देखिए n2 2 n1 1, इज इट क्लियर? तो जो हीलियम में 2 4 था, ये यहाँ पे सॉरी 4 2 था, ये यहाँ पे 2 1 है। तो दोनों की जो फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और लेमडा सेम रहेगा। ये हीलियम का इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के लिए। अब 2.34 देखिए, ये भी बाकी। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर फॉर द प्रोसेस टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम He+। He में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव है और दूसरा एक रिमूव करना है। तो फाइंड आउट द एनर्जी रिक्वायर। तो एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज़ करो, ये रहा -2.18 Z²/n²। तो हीलियम में से ये दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा ये आपको पता होना चाहिए। हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम मतलब 2, तो हीलियम का है 1s2, इज इट क्लियर? तो पहला इलेक्ट्रॉन भी इसमें से निकालेंगे, दूसरा भी यहाँ से निकालेंगे, तो n की वैल्यू क्या आएगी 1, ये रहा देखिए, इज इट क्लियर? ये इन्फिनिटिव रखने की ज़रूरत नहीं है, इन्फिनिटिव का तो ज़ीरो ही होगा। इलेक्ट्रॉन बाहर जाके इन्फिनिटिव डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसकी ई इन्फिनिटिव तो हमने ज़ीरो एक्सेप्ट कर ली। तो यहाँ तो ये माइनस है ही, तो ये माइनस नहीं, एनर्जी नहीं पूछी है, एनर्जी डिफरेंस पूछा है। हाँ, तो एनर्जी डिफरेंस आपको ये फॉर्मूले से फाइंड करना है कि एनर्जी बाहर का इलेक्ट्रॉन जो है माइनस हमने जो एनर्जी यहाँ पे फाइंड की, ये पहले फाइंड कर लो, बाद में इसकी ज़ीरो ले लो, माइनस इसकी भी माइनस आएगी, मानो कि x आती है, तो हमारा आंसर आएगा +x, ठीक है। ऐसे यहाँ पे E1 तो फाइंड किया नहीं, सीधा यहाँ पे वैल्यू रखी है, तो सीधा आपका आंसर आएगा 2.18 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻18 जूल, इतना एनर्जी डिफरेंस आएगा। डेल्टा ई और दूसरा पूछा है क्वेश्चन, नहीं डेल्टा ई का आंसर आ रहा है इतना। हाँ, ये यहाँ पे 0 और बाद में ये वैल्यू रखे, डेल्टा ई इतना आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, बहुत ही ईजी है ये डेल्टा ई की वैल्यू। अब ये कौन सा नंबर था 2.34, अब 40 में जाना है, 2.40 में ये भी 2.40 इज़ द लॉजिकल क्वेश्चन। आई थिंक मैंने डिस्कस शायद किया होगा, नहीं किया है तो और एक बार कर लेते हैं कि रुथरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड, प्लेटिनम एट्सेट्रा उसको यूज़ किया अल्फ़ा पार्टिकल बॉम्बार्ड करने के लिए। उसने लाइट पार्टिकल क्यों नहीं लिए, लाइक एल्यूमिनियम, ठीक है। तो बहुत ही सीधा साधा क्वेश्चन है कि जो रिज़ल्ट लाइट पार्टिकल में हैवी पार्टिकल में मिलते हैं तो रिज़ल्ट ही नहीं मिलता, क्योंकि हैवी पार्टिकल में पर 20,000 एक अल्फ़ा रे वापस बाउंस बैक हो रहा है ना।
तो अगर आप लाइट पार्टिकल लेते तो आपको वो बाउंस बैक वाला रिजल्ट ही नहीं मिलता। तो ये आपका आंसर है कि अ थिन फॉइल of higher atoms will not give the same result given by the foil of heavier atom. So lighter atoms would be able to carry very light positive charge and they will not cause the enough deflection of alpha particle. तो अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन ही देखने को नहीं मिलता, तो हमें कैसे पता चलता कि उसमें न्यूक्लियस है। तो बहुत ही सीधा साधा ये 40 नंबर का है। अब 3-4 क्वेश्चन बाकी है। 41 हमें देखना है, ये लीजिए 41। ये भी सीधा साधा क्वेश्चन है कि हमें ये सिंबल इस ऐसे राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंबल कैन बी रिटन वेयर इज दिस आर नॉट एक्सेप्टेड। तो सिंबल का पहला लेक्चर अगर आप याद करेंगे तो अगर हमारा एलिमेंट एक्स है तो हम नीचे एटॉमिक नंबर रखते हैं, इधर एटॉमिक मास रखते हैं। तो ये सही है, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास, ठीक है। लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते यहाँ एटॉमिक मास और यहाँ एटॉमिक नंबर, ये गलत बात है, ये सही बात है, ऐसे नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे ऐसे ही किया है, देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर ऊपर लिखा है, यहाँ एटॉमिक मास नीचे, एटॉमिक नंबर ऊपर। हाँ, यूपीएससी ये फैसिलिटी हमें दे रही है कि आप एटॉमिक नंबर नहीं लिखते और सिर्फ एलिमेंट ऐसे लिखते हैं, ब्रोमीन 79, क्योंकि आजकल एटॉमिक नंबर हर किसी को पता होता है। पूरा पीरियोडिक टेबल जिसने याद कर लिया उनको एटॉमिक नंबर तो पता होता है, एटॉमिक मास नहीं पता होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो या तो ऐसे लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू आवर स्टैंडर्ड सिस्टम, ठीक है। यहाँ मास नीचे लिखा है तो स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं है, यहाँ एटॉमिक नंबर ऊपर लिखा है तो ये सिस्टम एक्सेप्टेड नहीं है। इज इट क्लियर? तो दिस टू आर कैन बी रिटन बट दिस टू कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। 45 number. In question number 45, you have to arrange the given list of all waves from radiation, from micro oven and amber light, traffic signal, cosmic rays, etc. ठीक है। तो मैंने एक डायग्राम दिया था सब इंक्रीजिंग वेवलेंथ का, ये रहा देखिए, FM रेडियो, अम्बर लाइट, रेडिएशन फ्रॉम माइक्रोवेव ओवन, ये माइक्रोवेव्स है, ये एक्स रेस एंड कॉस्मिक रेस। ये डायग्राम सीधा है हमारा। तो आपको दो ऑर्डर में फाइंड आउट करना है, एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो जो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर होगा उससे रिवर्स वेवलेंथ का ऑर्डर होगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/λ। तो लेमड़ा का ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर जो इंक्रीजिंग होगा इससे रिवर्स लेमड़ा का होगा। तो फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे है आपके पास, जो बुक में डायग्राम दिया है उसमें से आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको पूरा लाइन में याद होना चाहिए। मैंने उस टाइम पे एक फॉर्मूला भी दिया था आपको कि आप इस फॉर्मूले से वो लेक्चर आप देख लेना, ठीक है। तो ये कौन सा नंबर है जिसमें आपको 45, अब दो है, एक 55 नंबर का आपने पूछा है। See here 55 number question, and you are given the Paschen series emission transition in Paschen series in n is equal to 3 start from orbit n and it is can represented by this formula। बहुत बढ़िया, यहाँ फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का दे दिया है आपको, ओके। एंड द वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन इज गिवन, calculate the value of n and transition is given 1 to 85 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब कि ये लेमड़ा है, एंड किस रीजन में ये मिलेगा स्पेक्ट्रम वो भी आपको फाइंड करना है। तो पहले फ्रीक्वेंसी का आप फॉर्मूला यूज़ कर लो, ठीक है। देन आपको क्या दिया गया है, एक तो वेवलेंथ नैनोमीटर में, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है न्यू इज इक्वल टू, ये रही रीड्स इक्वेशन 3.29 10⁻²। तो ये पहला 3 n इज इक्वल टू 3, बाद में ये जंप लगा के कहाँ गया, वो सेकंड स्टेज आपको फाइंड करना है n, ठीक है। तो न्यू इज नथिंग बट न्यू इज इक्वल टू c/λ।
तो सी तो आपको पता है, ये वैल्यू रख दो, लेमड़ा भी आपको पता है, तो न्यू आपका आएगा ये जो न्यू की वैल्यू है वो न्यू की वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो। अब न्यू की वैल्यू आप वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको मिलेगा ये न्यू की वैल्यू 2.33 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻14। तो बाद में ये सिंप्लीफिकेशन है 1.9 1/n²। ठीक है, कैलकुलेटर से आप सीधा इसको अब सॉल्व कर लेना। सॉल्यूशन है और ये राइट है, देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर सीधा। ठीक है, ये मैथमेटिकल स्टेप है। तो आपका n जो है 5 आएगा। तो n अगर 5 आता है, फाइनल एक्साइटेड स्टेट 5 नंबर आता है, तो 5 नंबर किस में आता है? ये इंफ्रारेड UVI है ना, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, और बाकी के 3 है IR वो लाइमैन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट एंड फोन। तो इसमें n 5, मतलब कि वो लास्ट सीरीज में ही आएगा। पहले में तो है N1 N2 3 4 लाइक दैट, N1 N2 लाइक दिस। दूसरे में है N1 2, तो N2 क्या है 3 4 5 लाइक दिस। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और N1 अगर 3 है तो बाद में N2 आता है 4 5 6। ठीक है, और N1 हमारा अगर 4 है तो यहाँ से स्टार्ट, तो ये दोनों जो है वो IR में होता है। तो N2 5 से स्टार्ट होगा IR में। ऐसे क्लियर? अब लास्ट प्रॉब्लम है 556। तो ये भी बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। आपको 2 रेडियस दी गई है। कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर इमिशन ऑफ ट्रांजिशन इफ स्टार्ट्स फ्रॉम एन ऑर्बिट हैविंग रेडियस दिस एंड एंड्स विद दिस पिकोमीटर। ठीक है, तो एक ट्रांजिशन है इलेक्ट्रॉन का, मैं पहले समझा देता हूँ। ये न्यूक्लियस, इज इट क्लियर? ये नैनोमीटर में है और ये पिकोमीटर में, दोनों पहले सेम आपको कन्वर्ट करना है। ये यहाँ से ट्रांजिशन होता है और यहाँ पे जा रहा है, तो इसकी रेडियस आपको दी है न्यूक्लियस से, इसकी भी दी है रेडियस। तो आपको सीरीज का नाम देना है कि वो कौन सी सीरीज है दोनों रेडियस से। तो हमारा फॉर्मूला यूज़ कर लो, R इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम में। तो पहले ये नैनोमीटर और पिकोमीटर दोनों को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको पिकोमीटर का फॉर्मूला यूज़ करना है तो पिकोमीटर का यूज़ कर लो। तो एंगस्ट्रॉम का ये है, पिकोमीटर का ये है। रेडियस है हमारी नैनोमीटर में, नैनोमीटर को मीटर और फाइनल पिकोमीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, वो तो आपको कन्वर्जन आता है। ये नैनोमीटर जो है ना, उसको पिकोमीटर में कन्वर्ट कर लो, पिकोमीटर को पिकोमीटर में ही रहने दो, और ये फॉर्मूला पिकोमीटर वाला यूज़ कर लो। 3 मैंने दिया था, एक पिकोमीटर वाला, एक एंगस्ट्रॉम वाला और एक नैनोमीटर वाला। ठीक है, आपकी मर्जी, कोई भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो मैंने रेडियस को पहले पिकोमीटर में इन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है, देखिए। तो इतना काम कर लो पहले। ठीक है, उसके बाद देखो, अब ये जो 2 रेडियस है ना हमारी, तो एक बार फॉर्मूला यूज़ करके R1 करके ऐसा करो, 52.9 n² डिवाइडेड बाय Z, ये पिकोमीटर। तो आपको ये करना है n² इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाइड बाई Z 52.9। ठीक है, तो ये यहाँ पे 1 दे दो पहले रेडियस के लिए, N1, जैसे यहाँ पे किया है, देखिए पहली रेडियस के लिए। ठीक है, N2 के लिए ये N1², ये ना फॉर्मूला में है ना, ये देखिए n²। तो पहली रेडियस के लिए यहाँ N1 लिख लो, दूसरी रेडियस के लिए आप यहाँ पे N2 लिख लो। ठीक है, तो अब पहले ऐसा करेंगे, R1 इज इक्वल टू 52.9 n1² डिवाइडेड बाई Z। तो n1² इज इक्वल टू R1Z अपॉन 52.9।
ठीक है, तो कौन सा है ये एटम? हाइड्रोजन है तो Z1 आएगा ना। यस, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू 1 रख दो। तो अब दो सिंप्लीफिकेशन आएगा, ऊपर वाला जो है ये अभी अभी मैंने करके दिया, उसकी वैल्यू रखो तो ये नंबर 1, और दूसरी रेडियस के लिए वैल्यू रखो नंबर 2, दोनों का रेशियो ले लो, सिंप्लीफाई कर दो, आपके पास आंसर आएगा 6.25। तो N1 N2 का रेशियो आएगा 2.5। ठीक है, अब 2.5 आएगा तो N1 N2 तो आएगा 25/10, सिंप्लीफाई करो तो 5 2, तो N1 5 N2 2। अगर 2 to 5 है तो वो बामर सीरीज होगी। ठीक है, 5 से इलेक्ट्रॉन 2 में जा रहा है, अपना घर सेकंड नंबर की ऑर्बिट है, तो कौन सी सीरीज होगी भाई? बामर। कहाँ मिलेगी? तो के विजिबल रीजन, बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। तो आपको और दूसरा एक चीज फाइंड करने को बोला है कि दिस ट्रांजिशन इज द फिफ्थ ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, सो इट बिलोंग्स टू द बामर सीरीज, है ना, इट बिलोंग्स टू द बामर सीरीज। तो वेव नंबर फाइंड कर लो, वेव नंबर का फॉर्मूला न्यू बार वाला यूज करके, न्यू बार इज इक्वल टू, ओके, ये कांस्टेंट और ये सीधा आपको मिलेगा न्यू बार। क्लियर? अब लेमड़ा फाइंड करना है, तो लेमड़ा इज इक्वल टू 1/न्यू, न्यू बार, न्यू बार इज इक्वल टू 1/लेमड़ा, तो लेमड़ा इज इक्वल टू 1/न्यू बार। तो न्यू बार की वैल्यू यहाँ पे है तो लेमड़ा मिलेगा आपको। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम बाकी थे वो मैंने स्पीड में यहाँ आपको सॉल्व करके दिए हैं, अगर नहीं आता है तो बाद में, ये परफेक्ट सॉल्यूशन, इसमें कोई मिस्टेक्स नहीं है। ठीक है, परफेक्ट आंसर है सब। तो सिर्फ मैंने आपको गाइड किया, मैंने कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ आपको गाइडलाइन दी है, आपको इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, इसमें ये जो कुछ 3-4 प्रॉब्लम ऐसे थे उसमें कुछ आपको आइडिया मिलने वाला नहीं था, तो आप सीधा इस रास्ते से जा सकते हो। जिसको पूरा समझ में आ गया है वो इजीली कर सकते हैं, मतलब कि थियरी जिसको समझ में आ गई और जिसके पास फॉर्मूले प्रिपेयर्ड है वो सीधे प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अब हम हमारा वही लेक्चर जो है थर्ड चैप्टर का वो स्टार्ट करेंगे।